محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ۔ اب ہم اپنے اس پروگرام کو آگے لے کر کے چلتے ہیں اور دوسری طرف اس کا رخ بدلتے ہیں۔ میں ایک ایسے شعلہ بیان مقرر کو دعوت اسٹیج دوں گا جو ہمارے اس گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں، جو محمد سرتاج، میں ان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سب کو رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو غور کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خالق السماوات والا رزق نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روزے روشن کی طرح ہیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو بھی فرض پر نازل کیا، روزے کو بھی فرض پر نازل کیا، زکوٰۃ کو بھی فرض پر نازل کیا، تمام احکام کو فرض پر نازل کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے۔ اعلیٰ و عرفہ شے کے لیے اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران ملت، توحید اور انسانیت کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نمازی کو اہمیت دی ہے، نماز کی ترقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا، کہیں پہلے الفاظ ذکر کیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ اکرام جھوم اٹھے۔ سبحان اللہ، اب تو ہمیں نمازوں کے ذریعے ہر مشکل آسان کر دیں گے۔ اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا، 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 500 نمازوں کا ثواب ملے۔
नमाज जन्नत हासिल करने का जरिया है, नमाज रज़ा इलाही हासिल करने का वसीला है, नमाज रसूल की मोहब्बत हासिल करने का वास्ता है। दिल में हर एक इंसान के असरत जहाँ की, दिल में हर एक इंसान के असरत जहाँ की, वो बाग़ जहाँ सर को झुकाने में मिलेगा। बहुत अच्छे। कोई मुत्तकी नमाज के बगैर मुत्तकी नहीं हो सकता, कोई वली नमाज के बगैर वली नहीं हो सकता, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब नहीं हो सकता। हुजूर ने भी नमाज अदा की, सहाबा इकराम ने भी नमाज की पाबंदी की, ताबईन ने भी तर्क नमाज नहीं की, अइम्मा मुज्तहिदीन ने भी नमाज को पकड़ रखा, औलिया इकराम ने भी नमाज को इख्तियार किया। कोई बताओ किसी नबी ने नमाज तर्क की हो और वह नबी बन गया हो, कोई वली नमाज के बगैर वली बन गया हो, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब बन गया हो, या कोई इमाम नमाज के बगैर इमाम बन गया हो, आप बता ही नहीं सकते। इसलिए कि अमल महबूब अमल है, नमाज से क़ुलूब को नूरानियत मिलती है, नमाज जिंदगी को नमाज से इंसान अफजल व अरफा होता है। अरे क्यों ना हो नमाज ही ऐसा तोहफा जिससे शैतान का मुकाला हो जाता है। बिरादरान मिल्लत, आज हम नमाजों को तर्क कर देते हैं, अफसोस तक का नहीं होता है, जानबूझकर नमाज भी छोड़ देते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान हो और वो एक दिन नमाज छोड़ता है, किसी महल्ले में जाकर किसी गली और चौराहों पर खड़ा होकर अपनी साथी से कहता है, अपने दोस्तों से कहता है, मैंने फजर की नमाज छोड़ दी है, मैंने असर की नमाज छोड़ दी है। अरे बड़ा फख्र के साथ कहता है कि मैंने असर की नमाज छोड़ दी है, मैंने फजर की छोड़ दी है। हाय अफसोस मुसलमानों, फख्र करते हो नमाज छोड़ने पर। नमाज जानबूझकर छोड़ने का इतना बड़ा गुनाह है, मालूम नहीं होगा। मैं आपके सामने जरा सी देर में अपनी बात को खत्म करूंगा और इस वाक़े को सुनाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आती है, हालत उसकी ये है, आंखों से आंसू जारी है, चेहरा जर्द हो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई और आकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के नबी हैं, जरा मेरे हक में दुआ कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि बता तो सही क्या हुआ। तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझसे जिना का सुदूर हो गया था और मुझसे एक लड़का पैदा हुआ और उसको मैंने कत्ल कर दिया। रब्बे काबा की कसम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि तेरा कोई इलाज नहीं है। वो औरत मायूस होकर पहाड़ी की तरफ जाती है। उधर आसमान और जमीन का मालिक ये सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था। फौरन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मूसा के पास भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूसा को आकर सलाम किया, ए मूसा, अल्लाह सलाम कहता है। और फिर फरमाया, ए मूसा, तेरे पास एक औरत आई थी, इसको तेने कैसे कह दिया कि अब तेरा इलाज नहीं है। खबरदार मूसा, तू ये समझता है जानी और कातिल से बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। रब्बे काबा की कसम, जानी और कातिल से बड़ा गुनहगार जानबूझकर नमाज तर्क करने वाला है। हमारे लिए तो जानवर भी नहीं चाहते कि हम नमाज छोड़ें, जानवर भी ये चाहते हैं कि हमारा मालिक नमाज पढ़े, अपने रब के सामने पेशानी को झुकाए। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आते हैं, जरा गौर से सुनना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आते हैं और आकर कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं गरीब हूँ, मैं मजदूर हूँ, पूरे दिन मैं मजदूरियाँ करता हूँ, मैं मजदूरियाँ करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालूम किया कि बता तो सही क्या हुआ। तो उसने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे पास
एक ऊंट है और वो मुझको रात को सोने नहीं देता, रात को मुझे परेशान करता है, अपने अंदर से एक इतनी भयानक आवाज निकालता है जिससे मेरी नींद खराब हो जाती है और मैं दिन का थका हुआ होता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि पहले ऊंट को लाया जाए। वो ऊंट को लाया जाता है। अल्लाह ताला ने ऊंट की जबान के अंदर बोलने की सलाहियत डाली। जब ऊंट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आता है और आकर अल्लाह के नबी को सलाम करता है, अल्लाह के नबी जवाब देते हैं और कहते हैं, ऊंट, जब तेरा मालिक तुझे टाइम पर खाने के लिए देता है, तेरा मालिक तुझे टाइम पर पीने के लिए देता है, फिर अपने मालिक को सताता क्यों है? तो ऊंट ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा मालिक मजदूर है, गरीब है, मैं भी अपने मालिक के साथ दिन में काम करता हूँ, अपने मालिक की इताअत करता हूँ। अल्लाह के नबी, जब हम शाम को घर आते हैं तो मेरा मालिक मगरिब की नमाज पढ़कर ईशा की नमाज छोड़ देता है और ईशा की नमाज से पहले ही सो जाता है और मैं अपने अंदर से एक ऐसी आवाज निकालता हूँ जिससे मेरा मालिक उठ जाए और ईशा की नमाज अदा कर ले। अल्लाह के नबी, इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें मेरा क्या कसूर है? भाइयों, जानवर भी नहीं चाहते हैं, आखिरकार हमें दुनिया से जाना है, आखिरकार दुनिया से जाएंगे, मालूम है हमें कब्रिस्तान के अंदर कब्र में जाना है। लेकिन भाई ये सुनो, बेनमाजी को तो जमीन भी पसंद नहीं करती है कि तुम मेरे अंदर दफन हो जा, जमीन भी कांपती है, जमीन भी डरती है ऐसे शख्स से जो नमाज छोड़ता हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर है कि एक बुढ़िया का तेल जमीन पर गिर जाता है, वो दरबार अमीरुल मोमिनीन में हाजिर होती है और मुतालबा करती है, ए उमर फारूक, जमीन ने मेरा तेल चूस लिया है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर कुछ लिखा और कहा कि इस कागज के टुकड़े को उस जगह पर रखना जहां पर तेरा तेल गिर गया है। रिवायतें मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, उलमा की मौजूदगी में ये पैगाम सुना रहा हूं। जब बूढ़ी अम्मा जान ने उस कागज के टुकड़े को जमीन पर रखा तो जमीन ने फौरन पूरा तेल उगल दिया। तमाम लोग हैरत ज़दा होते हैं, ये कैसा माजरा है? इस कागज के टुकड़े को खोल कर देखा जाता है, इसमें लिखा हुआ होता है, ए जमीन, या तो इस बूढ़ी अम्मा के तेल को वापस कर दे वरना तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दूंगा। मेरे भाइयों, जमीन भी कांपती है। हमें इस इबरतनाक वाक़े से ये नसीहत हासिल करनी चाहिए कि अगर हम नमाज छोड़ेंगे तो कब्र में जाने के बाद कब्र हमारे साथ क्या मामला करेगी। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से महफूज फरमाए और नमाज का हमें पाबंद बनाए। मैं शेर के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ कि पढ़ नमाज पंजगाना न कर कोई बहाना, कि पढ़ नमाज पंजगाना न कर कोई बहाना, इसी में है तेरी जन्नत वरना दोज़ख है तेरा ठिकाना। इंसान का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, इंसान का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून से गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, खून से गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ी है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी, फिर से ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। बड़ी गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।